اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم مرکبات پڑھیں گے۔ ہم نے ابھی تک اسم کے بارے میں پڑھا کہ اسم کو اگر ہم نے جملے میں یا ترکیب میں استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ 4 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1، اس کا جنس پتہ ہونا چاہیے، اس کا عدد پتہ ہونا چاہیے، اسم کا اعراب پتہ ہونا چاہیے، اور اسم کی وسعت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ 4 چیزیں جب ہمیں پتہ چلی تو اب ہم ایک اسم کو کسی بھی جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کا مرکب بنا سکتے ہیں۔ مرکب کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ مرکبات کو دیکھتے ہیں ذرا، مرکبات کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، مرکب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زائد اسما کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ مرکب کہلاتا ہے، اور جو اکیلا کوئی لفظ ہوتا ہے تو اسے مفرد کہتے ہیں۔ مفرد ہوتا ہے سنگل، مرکب ہوتا ہے جوڑ، کمپاؤنڈ۔ مرکب کی 2 قسمیں، ایک مرکب تام ہوتا ہے، مرکب تام ہوتا ہے جس کو جملہ یا سینٹنس کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مرکب ناقص، مرکب ناقص یعنی فریز۔ مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بات پوری سمجھ میں آتی ہے، بات مکمل ہوتی ہے، جبکہ مرکب ناقص میں بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، بات ادھوری رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی اس میں ہوتی ہے۔ جو مرکب تام ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ نامنل سینٹنس، یعنی وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ اسم سے جو جملہ شروع ہوگا، اسم سے جو جملہ شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، نامنل سینٹنس۔ مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے 2 جملے دیے گئے ہیں، اللہ علیم، اللہ علیم، تو اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، تو اس لیے یہ اسم سے جملہ شروع ہوا، اس لیے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ محمد رسول، محمد ایک اسم ہے، اس لیے محمد سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہوگا۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جملہ اسمیہ ایک ہو گیا مرکب تام میں سے، دوسرا ہوتا ہے مرکب تام کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وربل سینٹنس، یعنی وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ مثال یہاں پر ہے قرأ حامد کتابا، قرأ فعل ہے، قرأ حامد، حامد نے پڑھا یا حامد نے پڑھی۔ جلس زید، زید بیٹھا، تو جلس فعل ہے، یہ فعل سے شروع ہوا اس لیے یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مرکب عطفی، یعنی مرکب عطفی سے مراد یہ ہے کہ جو مرکب ہے اس کو عطف کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے، جو حروف عطف ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب و قلم، کتاب و، یہ و جو ہے یہ حرف عطف ہے، کتاب ایک الگ لفظ ہے اور قلم ایک الگ، لیکن دونوں کو واو نے جوڑ دیا، کتاب اور قلم، تو اس لیے اس کو مرکب عطفی کہیں گے۔ ایسے دوسرا ہے مرکب توصیفی، مرکب ناقص کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کا مطلب ہے جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے، ایڈجیکٹیو جس میں آ رہا ہے، ایڈجیکٹیو کمپاؤنڈ۔ تو جیسے کتاب جمیل، خوبصورت کتاب، کوئی خوبصورت کتاب یا ایک خوبصورت کتاب، کتاب جمیل، تو یہ اس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے۔ مرکب اضافی یعنی وہ جس میں کسی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، ریلیٹیو پروناؤن، کسی چیز کو کسی دوسرے کی طرف ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ جو کی ہے اس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے اس جملے میں اضافت ہے، اللہ کی کتاب۔ ایسے ہی مرکب جاری ہے، مرکب جاری وہ کمپاؤنڈ ہے جس میں حرف جر کا استعمال ہو۔ حرف جر کون سا ہے؟ فی، بی، الا، علا وغیرہ۔ فی الکتاب، کتاب میں۔ ایسے ہی پھر مرکب اشاری،
मुरक्कब इशारी से मुराद है जिसमें इशारा का इस्तेमाल हो, जैसे हाजल किताब, हाजा इसमें इशारा है और अल किताब यहाँ पर अब इसको मुशार इलैह भी कहते हैं, बदल भी कहते हैं। तो हाजल किताब, ये किताब, इसका तर्जुमा ये किताब है नहीं होगा बल्कि ये किताब। तो एक मुरक्कब में मौजूद अल्फाज के आपस में ताल्लुक को तरकीब कहते हैं, जो जिस वजह से ये जुड़े हुए होते हैं उस जोड़ को असल में तरकीब कहते हैं। तो जुड़ने की कई सारी वजह हमने देखी, इशारे की वजह से जुड़ता है इस्म, जार की वजह से जुड़ता है, अच्छा इजाफत की वजह से जुड़ता है, सिफत होने की वजह से जुड़ता है और अत्फ की वजह से जुड़ता है ना। तो अब जरा पहले हम मुरक्कब अत्फी को देखते हैं। मुरक्कब अत्फी जो है इस इसके कवायद क्या है, इसे एक नज़र देख लें। पहले हुरूफ अत्फ हमें पता चल जाए। देखिए हुरूफ अत्फ कितने हैं, 5। वा, वा का मतलब क्या है, और, कुछ, दूध और पानी। इसका तर्जुमा क्या होगा, कुछ दूध और पानी। ये कुछ नकरा की अलामत है ना, नकरा की अलामत है कुछ। तो देखिए यहाँ पर तर्जुमा जो किया है लबनुन, है ना, तनवीन के साथ, लबनुन माउन, लबनुन व माउन, कुछ दूध और पानी। ऐसे ही औ के माने हैं या, तो यहाँ पर उर्दू में है कुछ दूध या पानी, तो ये फिर कुछ नकरा की अलामत है, यहाँ अब लबनुन औ हो जाएगा, औ माउन। सम्मा का मतलब है फिर, हम का मतलब या, फा का मतलब पास या फिर। तो ये हुरूफ अत्फ हैं सारे। मुरक्कब अत्फी के कवायद पढ़ने के हवाले से देखिए, पढ़ने के हवाले से कवायद क्या है, जो या, रा, मीम, लाम, वाव, नून का कायदा है पढ़ने का कुछ, वो इस तरह से है। देखिए हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पर जोड़ा दो अस्मा को, इब्राहिम व इस्माइल। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इब्राहिम व इस्माइल। लेकिन यहाँ पर अब रा आया दूसरे में, शाकिरुन, और आगे वाव आ रहा है, यरमलून में से रा और वाव आ रहा है ना। अब शाकिरुन व आदिलुन, अब क्या होगा, ये आगे मिलाया जाएगा, शाकिरुन व आदिलुन। अब तनवीन को जाहिर नहीं बल्कि उसको वाव के साथ जोड़ देंगे, शाकिरुन व आदिलुन। तो देखिए ये है जो अल्फाज रा, लाम, मीम, नून, वाव या से यानी यरमलून से शुरू होते हैं, उन्हें माकबल से मिलाकर पढ़ा जाता है, बशर्ते कि माकबल नून साकिन या तनवीन हो। यहाँ वाव जो है हुरूफ यरमलून में से है, और ये वाव से शुरू हो रहा है, इससे पहले हुरूफ यरमलून में से रा है, इसलिए इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो ये पढ़ने का एक कायदा है। ऐसे हमजतुल वस्ल का भी पढ़ने का ही कायदा है। हमजतुल वस्ल क्या होता है, हमजतुल वस्ल वो हमजा होता है जिसको पढ़ने के लिए, यानी अगर साकिन से कोई हर्फ शुरू हो रहा है और साकिन को पढ़ नहीं सकते इसलिए उससे पहले एक हमजा लगाया जाता है, उसको हमजतुल वस्ल कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर है सादिकुन व हसनुन, इसका मतलब हो गया एक सच्चा और एक खूबसूरत। अब अगर हमने इसको अलिफ लाम लगाना है, अलिफ लाम लगा दिया, अब क्योंकि ये सौद है आगे और ये जो लाम है ये लाम साकिन रहता है, अब ये लाम को कैसे पढ़े, यहाँ लाम, क्योंकि लाम अब पढ़ नहीं पाएंगे हम, इसलिए इससे पहले हमने एक अलिफ लाया इसको सिर्फ पढ़ने के लिए, अस्सादिकु, ये क्या हुआ, अस्सादिकु। और अगर यही लाम बीच में आ जाए तो वहां ये हमजा नहीं काम करेगा, लिखा तो रहेगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, जैसे अस्सादिकु वल हसनु। अब ये वाव यहाँ है, वाव से सीधा लाम के साथ मिल गया, ये अलिफ खाली यहाँ रह गया, इसको पढ़ेंगे नहीं। तो ये हमजतुल वास्ल का कायदा ये है कि अगर ये बीच में आएगा तो इसको पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन शुरू में आएगा तो फिर पढ़ना है, क्योंकि इसके बगैर साकिन हर्फ को हम पढ़ नहीं पाएंगे। जिस लफ्ज पर लाम तारीफ लगा हो वो अपने से पहले लफ्ज से मिलाकर पढ़ा जाता है,
اور اس صورت میں لام تعریف کا حمزہ لکھنے میں تو موجود رہتا ہے لیکن تلفظ میں گر جاتا ہے. جو حمزہ پہلے لفظ سے ملانے کی وجہ سے تلفظ میں گر جاتا ہے اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. تو ساکن حرف کو آگے ملانے کا قاعدہ آپ کو یاد ہوگا، یہ صادقن او کاذبن ہے. اب الصادق اول کاذب، اب جب الف لام آگے لگا ہوگا تو الصادق او الکاذب نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو صرف زیر لگائیں گے، اور یہ زیر جو ہے یہ صرف پڑھنے کے لیے زیر ہے، باقی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، معنی میں یا کسی اور چیز میں اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ صرف الصادق او الکاذب پڑھنے کے لیے ہے. یہ حمزۃ الوصل سے پہلے لفظ کا آخری حرف اگر ساکن ہو تو اسے عموماً زیر دے کر آگے ملاتے ہیں. لفظ من سے اس قاعدے کا استثناء ہے، یعنی من کے ساتھ یہ قاعدہ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے اگر منہو کہنا ہے تو یہ سیدھا ہو جائے گا منہو. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اب یہاں زیر دے کر آگے ملانا ہوگا من ہی نہیں، بلکہ یہ منہو ہی ہوگا. تو من کے علاوہ باقی ہر چیز کے ساتھ یہ قاعدہ ایسے ہی چلے گا. اب کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں ذرا ایک نظر دیکھ لیں، پڑھیں سب لوگ. خبز روٹی، جمل اونٹ، درس سبق. روٹی، جمل اونٹ، درس سبق، قمر چاند، صعب دشوار، دشوار ہے نا. دشوار، لبن دودھ، لبن دودھ، فرس گھوڑا، طیبن، تیبن تیبن ہے یہ، طیبن تیبن خوشبو، خوشبو، سہل آسان، جدار دیوار، دار دیوار. جدار. اب دیکھیں یہاں پر مرکبات عطفی دیے ہیں، تو ایک ایک کر کے یاسر بھائی پہلے کو پڑھیں اور ترجمہ کریں. خبز و ماء، ایک ایک روٹی ایک روٹی اور ایک پانی، اور کچھ پانی ہے نا. اور کچھ پانی. جی ڈاکٹر صاحب اس کا کریے آپ. الخبز والماء، الخبز والماء، اور روٹی اور پانی. جی تنویر صاحب لبن او ماء، دودھ اور کچھ پانی، کچھ دودھ اور کچھ پانی. یا پانی، یا پانی. ظاہر صاحب الحسن او القبیح، الحسن خوبصورت یا بدصورت. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ جاہل و عالم، ایک جاہل اور ایک عالم. ماشاء اللہ. فاروق صاحب اچھا الجاہل او العالم. جی السلام علیکم. وعلیکم. الجاہل او العالم، جاہل یا عالم. جاہل یا عالم. جی الجاہل والظالم. کچھ نیکسٹ تنویر صاحب. ظالم. جاہل اور ظالم. ایک جاہل، الجاہل ہو جاہل اور ظالم. جی عنایت بھائی العادل او الظالم. ایک عادل انصاف والا اور ایک ایک کیس لوگوں تو ایک لگانے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں کیا یہ نکرہ ہے؟ نکرہ نہیں ہے نا. ہاں تو پھر سیدھا کہیے معرفہ، عدل کرنے والا اور ظلم کرنے والا، عدل کرنے والا اور ظلم کرنے والا. یا ظلم کرنے والا او ہے نا. ہاں یا ظلم کرنے والا. جی نیکسٹ کتاب او درسن. ایک کتاب اور ایک سبق. نیکسٹ الماء والطیب. یا پانی اور خوشبو. پانی اور خوشبو. جزاک اللہ. پانی یا. چلیے ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ کیجئے. ایک گھر اور ایک بازار. بیتن و مدینتن. سوکن سوکن بازار ہے سوکن. مدینتن ہو گیا شہر. یاسر بھائی. البیت او السوق. ماشاء اللہ. ظاہر صاحب. بیت او سوق. بیتن او السوق. او سوکن. او سوق.
ये नकरा है बैतुन फारूक साहब घर या बाजार? बैतुन अल बैत। अल बैतु अविस सूक। माशाल्लाह। तनवीर साहब जन्नत या दोजख? जन्नत और जहन्नम या दोज़ख। अल जन्नतु या अल जन्नतु लगेगा, ठीक है। अल जन्नत। अविन नारू। जी यासिर साहब, यासिर लोन साहब, आग और पानी, आग या पानी? अन्नारु औ माअन। अविल माउ, अविल माउ। चलिए रियाज साहब, आग और पानी। अन्नारु वल माउ। माशाल्लाह। नेक्स्ट बसीर साहब, चांद और सूरज? अल कमरु वशम्सु। अल कमर वशम्स। जी इनायत भाई, सूरज या चांद? अशम्सु अविल कमरु। माशाल्लाह। कुछ आसान और कुछ दुश्वार, डॉक्टर साहब? सहलुन सहलुन असहलुन सहलुन सहलुन सालुन व दुश्वारुन साबुन साबुन। साबुन। दुश्वारुन तो अब्दुल वाहिद साहब, दुश्वार या आसान? जी नेक्स्ट। साबुन साबुन और सहलुन सहलुन अस्साबु अविस सहलु। असहलु। कोई बढ़ई या कोई दर्जी? चलिए जो रह गया वो बताए। हदी इसको अन्नजारु नज्जार नज्जारुन नज्जारुन आओ अविल खयात। यस खबर क्या है इसमें? औ खयातुन। और खयातुन। आओ खयातुन। नज्जारुन कुछ पुरानी मिसालें लेते हैं मुरक्कब अत्फी की। पढ़िए इसको कोई पहली आयत को। المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين صدقة أو نسك الأول والآخر والظاهر والباطن. अच्छा अब ये कर लिया ना आपने, इसका तर्जुमा क्या होगा? मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। इसकी तरकीब ऐसे होती है, देखिए ये पहला आ गया ना मातूफ अलई, ये आ गया ना मातूफ अलई। अब ये होगा मातूफ अलल मुस्लिमीन। तो इस सब को हम आसान तरकीब यही करेंगे, मातूफ अला हाजा मातूफ अला हाजा मातूफ अला हाजा मात, यानी ये सब ये इस पर मातूफ है, ये इस पर मातूफ है, इस पर ये इस पर इस पर इस पर मातूफ, तो फिर ये जुमला आतिफा हो जाएगा। चलिए अल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। करिए डॉक्टर साहब तर्जुमा। पहला और बाद वाला, हाजिर और गायब। ज़ाहिर और पोशीदा। ज़ाहिर और पोशीदा, हाजिर गायब नहीं, सामने और पीछे। जी चलिए फारूक साहब, सियामी औ सदक़ति, सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन। सियामिन गो रोजा या सदका, ठीक, औ नुसुकिन या परहेजगारी या कुर्बानी। कुर्बानी मुनासिक। ठीक, नुसुकिन परे या जी कुर्बानी। ठीक, चले नेक्स्ट। लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन। खेल तमाशा खेल और तमाशा और
زینت खेल और तमाशा और जीनत। चलो क्या तनवीर साहब, गनियन और फकीरन, फकीरन, अमीर या फकीर। मुरक्कब तौसीफी का तारुफ ले लेते हैं क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। मुरक्कब तौसीफी एडजेक्टिवल कंपाउंड यानी जिसमें सिफत का इस्तेमाल होता है। ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे की सिफत बयान करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कुशादा मस्जिद, खूबसूरत कलम, महंगी किताब, जालिम कौम, नेक मुसलमान, पाकीज़ा औलाद, है ना। इन मिसालों को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक मौसूफ, मौसूफ वो होता है जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। तो पहला जो जिसका मौसूफ है और दूसरी सिफत, जो इस्म तारीफ बयान करे उसे सिफत कहते हैं। अरबी ग्रामर का नाम इसका है नात, इसको बोलते हैं नात, लेकिन हम चूंकि उर्दू के हिसाब से पढ़ रहे हैं अभी इसको, इसलिए हम इसको सिफत बोलते हैं। लेकिन आगे चल के कोई अगर कहे ये नात है तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। तो नात असल में सिफत को कहते हैं। देखिए कुशादा मस्जिद, उर्दू में कुशादा पहले आ रहा है, मस्जिद बाद में, जबकि मस्जिद मौसूफ जिसकी सिफत बयान हो रही है उसे मौसूफ कहते हैं और कुशादा इसकी सिफत है। उर्दू में सिफत पहले और मौसूफ बाद में आता है ना, लेकिन अरबी में इसके अपोजिट है। देखिए यहाँ पर नेक मर्द है तो इसमें नेक सिफत है और मर्द मौसूफ, मौसूफ पहले और सिफत बाद में आ रही है। मुरक्कब तौसीफी के दो अज्जा होते हैं, एक मौसूफ प्लस सिफत इज इक्वल टू मुरक्कब तौसीफी। तो इसमें देखिए सिफत पहले, सिफत बाद में आएगी और मौसूफ पहले, जबकि उर्दू में सिफत पहले और मौसूफ बाद में। लेकिन लड़का, नेक लड़का, तो नेक सिफत है इसलिए सिफत पहले आई क्योंकि उर्दू का मुरक्कब तौसीफी है। लेकिन इसका तर्जुमा जब हम करेंगे तो हम मौसूफ को पहले लाएंगे, क्योंकि लड़का मौसूफ है इसलिए हमने अल वलदु को पहले लाया और नेक अस्सालिहु को बाद में लाया। ठीक है, अल वलदु सालिहु, अरबी में मौसूफ पहले और सिफत बाद में आएगी और तर्जुमा फिर तरतीब उलट के उर्दू में होगा। अल वलदु अल कबीहु, अल वलदुल कबीहु, इसका मतलब होगा ऐसे तर्जुमा होगा, बदसूरत लड़का। देखिए ये सबसे अहम बात है जिसको हमने याद रखना है। सिफत इस्म के चारों पहलुओं यानी हालत, जिन्स, अदद और वसत के लिहाज से मौसूफ के मुताबिक होगी। हमने जो चार चीजें पढ़ी थी, इस्म को तरकीब में इस्तेमाल करने के लिए हमें उसकी हालत यानी आराब के बारे में पता होना चाहिए, उसके जिन्स के बारे में पता होना चाहिए, अदद और वसत के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए जो मौसूफ होगा, मौसूफ हालत के हिसाब से अगर वो रफा में, नसब में या जर में है तो सिफत भी उसी हाल में होगी। जिन्स के एतबार से जो मौसूफ होगा वही सिफत होगी और अदद के एतबार से जो मौसूफ होगा वही सिफत होगी, वसत के एतबार से जो मौसूफ होगा वही सिफत होगी। तो तर्जुमा जब हम करेंगे मारफा और नकरा का खास ख्याल रखेंगे। जैसे यहाँ पर आ रहा है मुस्लिमून सालिहून, तो बताइए मुझे मुस्लिमून मारफा है कि नकरा है? मुस्लिमून नकरा है, नकरा है, तो इसलिए इसका तर्जुमा हम करेंगे कुछ नेक मुसलमान, कुछ नेक मुसलमान। अगर ये होता अल मुस्लिमून अस्सालिहून तो फिर हम करते नेक मुसलमान तर्जुमा, है ना, नेक मुसलमान। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें इन तमाम पहलुओं को सामने रखा गया है मद्देनजर रखते हुए। जैसे ये टेबल नकरा का है, इसमें जो भी जुमले आएंगे वो सारे के सारे नकरा होंगे, वाहिद के भी होंगे, तस्निया के भी, जमा के भी, मुजक्कर में, और मुअन्नस के भी वाहिद, तस्निया और जमा के होंगे। और रफा में भी मुरक्कब ये मुरक्कब तौसीफी होगा, रफा वाला भी, नसब वाला भी और जर वाला भी। देखिए खादिमुन सालिहुन, ये मुजक्कर, वाहिद,
नकरा रफा है, मुजक्कर वाहिद नकरा रफा, खादिमुन सालिहुन। तो हर चीज में सिफत ये है, सिफत भी मुजक्कर है, सिफत भी वाहिद है, सिफत भी नकरा है और सिफत भी हालत रफा में है। तो इन चार पहलुओं में सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी। ऐसे नसब में खादिमन सालिहन, जर में खादिमिन सालिहन, तस्निया में खादिमानी सालिहानी, नसब में खादिमाइनी सालिहानी, जर में खादिमाइनी सालिहानी। ठीक है, देख रहे हैं आप, खादिमून सालिहून, खादिमीन सालिहीन। अब मुअन्नस वाहिद नकरा रफा, खादिमतुन सालिहतुन, नसब खादिमतन सालिहतन, जर खादिमतिन सालिहतिन, तस्निया में खादिमतानी सालिहतानी रफा, खादिमतैनी सालिहतैनी नसब और जर, जमा में खादिमातुन सालिहातुन, नसब और जर में क्या आएगा, खादिमातिन सालिहातिन। ठीक है, ये हो गया नकरा का टेबल पूरा। इसमें सारे जो ये मुरक्कबात हमने बनाए ये सब क्या है, नकरा है। दूसरा टेबल आपको दिया जा रहा है, ये मारफा का है। तो चलिए बारी बारी सब बनाइए इसी को। ये जो खादिमुन सालिहुन है, खादिमुन सालिहुन को मुजक्कर वाहिद रफा में आप मारफा की मुरक्कब चलिए बारी बारी, चलिए डॉक्टर साहब बनाइए आप रफा में। चलिए यासिर साहब बनाइए नसब में। चलिए बसीर साहब बनाइए जार में। जी बसीर भाई आवाज नहीं आई आपकी, नेटवर्क कमजोर है। चलिए नेक्स्ट तनवीर साहब जार में बताइए। अल-खादिम अस्सालिह। जी चलिए जाहिर साहब तस्निया। अल-खादिमानी अस्सालिहान, अल-खादिमानी अस्सालिहानी, बिल्कुल सही है। फारूक साहब नसब में नहीं है फारूक साहब। अच्छा चलिए यासिर साहब आप बताइए। अल-खादिमैनी अस्सालिहैनी, जार में अल-खादिमैनी अस्सालिहैनी। चलिए रियाज साहब जमा में बनाइए। अल-खादिमून अस्सालिहून। माशाल्लाह। इनायत भाई नसब में खादिमीन सालिहीन, अल-खादिमीन अस्सालिहीन, और जर में जर में भी यही बनेगा, अल-खादिमीन अस्सालिहीन। ठीक है जी। चलिए तनवीर भाई मुअन्नस वाहिद मारफा रफा। अल-खादिमतु अस्सालिहतु। माशाल्लाह। नसब अल-खादिमति अल-खादिमता, नसब में जबर आती है ना, अल-खादिमता अस्सालिहता, जर में अल-खादिमति अस्सालिहतु। माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट कोई दूसरा बनाइए तस्निया इसका। अल-खादिमतानी। जी अल-खादिमतानी, नसब और जर बसीर साहब। अल-खादिमतैनी, हाँ अल-खादिमतैनी अस्सालिहतैनी, मोनस है ना, मोनस तस्निया। चलिए रियाज साहब मोनस का जमा बनाइए रफा में। अल-खादिमात अल-खादिमातु अस्सालिहातु। जी नसब और जर अल-खादिमाति अस्सालिहाती। माशाल्लाह माशाल्लाह अल-खादिमाति अस्सालिहाती। माशाल्लाह। देखिए इमरातुन होता है औरत और इसकी जमा है निसाउन, जमा मुकस्सर।
कबीहुन होता है बदसूरत और इसकी जमा है किबाहुन, जमा मुकस्सर, याद रखिए ये जमा आपने याद रखनी है। रजुलुन मर्द होता है, इसकी जमा रिजालुन, जमा मुकस्सर। तवीलुन लंबा, तवील, इसकी जमा तिवालुन। दरसुन जमा दुरूसुन, सबक। साबुन जमा सियाबुन, सख्त, दुश्वार। अब देखिए इसमें एक चीज आपने नोट की होगी, यहाँ इस साइड से जितने भी जमा हमने पढ़े ये एक ही वजन पे है, किबाहुन, तिवालुन, सियाबुन, ठीक है ना। ये वजन क्या बन रहा है, फिआलुन, ठीक है। फिआलुन के वजन पे एक जमा मुकस्सर फिआलुन के वजन पे आती है। ये देखिए ये है निसाउन, रिजालुन, दुरूसुन। अब ये दो वजन है, निसाउन ये भी इसी वजन पे है, रिजालुन ये भी इसी वजन पे, सिर्फ दुरूसुन एक दूसरा वजन है, फुउलुन का वजन है ये। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये जो भी जमा मुकस्सर है ये किसी न किसी वजन पे आती है, बाकी इसका कोई कायदा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुरकब तौसीफ़ी की जो मज़ीद तर्जुमा वगैरह करना है वो मेरे ख्याल से कल करेंगे, क्योंकि आज ताक़रात थी, सब लोग पूरी रात जागे हुए थे। इंशाल्लाह फिर कल आगे बढ़ते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।